پاکستان میں پچھلے کچھ دنوں میں ملین آف فالورز رکھنے والے ٹک ٹاکر کی پرائیویٹ ویڈیوز وائرل ہوئیں۔ سوشل میڈیا پر لوگوں کو جیسے ہی پتہ چلا، سب لوگ یہ ویڈیوز ڈھونڈنے میں لگ گئے۔ ہزاروں لوگ ایک دوسرے سے ویڈیوز مانگ رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو اتنے زیادہ ایڈکٹڈ ہیں کہ ہزاروں روپے دے کر وہ ویڈیوز خرید رہے ہیں۔ اب یہاں پر رک کر سوچو، کیوں آج کی یوتھ اس ٹائپ کے کنٹینٹ سے اتنا زیادہ ایڈکٹڈ ہے؟ کیوں پاکستان اور انڈیا سمیت پوری دنیا کی ینگ جنریشن گھنٹوں تک روزانہ ایسا کنٹینٹ کنزیوم کر رہی ہے جو دھیرے دھیرے ان کی لائف کو برباد کرتا جا رہا ہے؟ بات ان لیک ویڈیوز کے بارے میں نہیں ہے، بات ہے پورن ایڈکشن کی، ایک ایسی ڈینجرس ہیبٹ جو سائلنٹلی آپ کے فوکس، پروڈکٹیوٹی، ریلیشن شپ اور مینٹل ہیلتھ کو برباد کرتی جا رہی ہے۔ اگر آپ کے دماغ میں بھی یہی مت ہے کہ یہ کوئی اتنی زیادہ سیریس پرابلم نہیں ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے یہ ہیبٹ آپ کے فیوچر کو نیگیٹیولی افیکٹ کر رہی ہے۔ پاکستان ایک اسلامی کنٹری ہونے کے باوجود ان کنٹری کی لسٹ میں آتا ہے جہاں پورن سب سے زیادہ سرچ کر کے دیکھا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹ سے لے کر ورکنگ پروفیشنل تک، 15 سال کے بچے سے لے کر 50 سال کے بوڑھے تک، سب اس ایڈکشن میں جکڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایڈکشن جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی جا رہی ہے۔ یہ سوشل میڈیا کی لیکس اور پرائیویٹ سکینڈل اس آگ میں پٹرول کی طرح کام کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پورن ایڈکشن اتنی تیزی سے کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس کے پیچھے 3 بڑے ریزن ہیں، اور ہر ایک ریزن اس پرابلم کو روز بروز بڑھاتی جا رہی ہے۔ پہلا ریزن ہے ایزی ایکسیسیبلٹی۔ آج سے 20 سال پہلے پورن دیکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا تھا۔ اس کے لیے آپ کو سی ڈی، ڈی وی ڈی یا میگزین کی ضرورت ہوتی تھی، اور اس میں بھی شرم اور ایفرٹ دونوں لگتے تھے۔ لیکن آج یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ آج کے زمانے میں آپ کو صرف 10 سے 15 ہزار روپے کا ایک سمارٹ فون چاہیے اور 50 روپے کا ایک انٹرنیٹ پیکج، اور پھر پورن صرف آپ کی ایک کلک کی دوری پر ہے۔ اور یہ کنٹینٹ سوشل میڈیا لنکس، ویب سائٹ اور ایپس کے ذریعے 24 گھنٹے اویلیبل ہے، اور اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا کہ آپ اپنے فون میں کیا دیکھ رہے ہو۔ ریسرچ کے مطابق زیادہ تر نوجوانوں کی ایوریج ایج پہلی دفعہ پورن دیکھتے وقت 11 سے 14 سال کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ وہ ایج ہے جب ان کا برین ڈیویلپ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن سکل سیکھنے اور اپنا پرپس ڈھونڈنے کی جگہ وہ اس ایڈکشن میں پھنس جاتے ہیں۔ سیکنڈ ریزن ہے انسٹنٹ پلیجر۔ دیکھیے دوستو، پورن بالکل ڈرگ کی طرح کام کرتا ہے۔ جب آپ اسے دیکھتے ہیں تو آپ کے برین سے ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ڈوپامین۔ یہ ہارمون آپ کو فوراً اچھا فیل کراتے ہیں اور آپ کو ایک سیٹسفیکشن دیتا ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ پورن دیکھتے ہیں، اتنی ہی زیادہ اس کے لیے خواہش بڑھتی جاتی ہے۔ آج آپ نے ایک ویڈیو دیکھی، کل وہی ویڈیو آپ کو وہ مزہ نہیں دے گی، پھر آپ کچھ اور نئی ویڈیو سرچ کرنا شروع کر دو گے۔ دھیرے دھیرے آپ ایسے کنٹینٹ تک پہنچ جاتے ہو جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، اور یہیں سے یہ ایڈکشن بڑھتی جاتی ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق زیادہ پورن دیکھنے سے برین کا ریوارڈ سسٹم چینج ہو جاتا ہے، اور آپ کو انسٹنٹ پلیجر کا ایڈکشن ہو جاتا ہے۔ اس ایڈکشن کی وجہ سے آپ ریئل لائف گولز پر فوکس نہیں کر پاتے، آپ کی موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے، اور ہر بار یہ ایڈکشن گلٹ اور اندر سے کھوکھلا کر کے چلی جاتی ہے۔ تھرڈ ریزن ہے سوشل میڈیا سکینڈلز۔ ریسنٹ ڈیز میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے انفلوئنسر کی پرائیویٹ ویڈیوز لیک ہوئی۔ سوشل میڈیا نے ان ویڈیوز کو ٹرینڈ بنا دیا۔ ہزاروں لوگ ان ویڈیوز کو سرچ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ گوگل ٹرینڈ کے مطابق پچھلے منتھ سب سے زیادہ سرچ کیے جانے والے ٹاپک میں سوشل میڈیا لیک ویڈیو سب سے زیادہ سرچ کی گئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیوں ہر 10 سے 15 دن کے بعد کسی نہ کسی سوشل میڈیا انفلوئنسر یا کسی رینڈم ٹک ٹاکر کی پرائیویٹ ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں؟
हालांकि उनके पास आईफोन जैसे सिक्योर डिवाइसेस होती हैं। इसका मतलब है कि वो लोग जानबूझकर अपनी वीडियोस वायरल करवाते हैं ताकि लोगों के सामने विक्टिम कार्ड खेलकर उनकी अटेंशन हासिल कर ले, क्योंकि आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में अटेंशन ही सबसे बड़ी करेंसी है। जिसके पास लोगों की अटेंशन है उसके पास फैंस भी है और पैसा भी। क्योंकि अगर ये जानबूझकर वीडियोस वायरल नहीं करवाते तो जब इनको ये पता चल गया था कि दूसरों की वीडियोस वायरल हो चुकी हैं तो ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड करके रिस्क लेने का फ़ायदा ही क्या है। इससे यही प्रूव होता है कि ये जानबूझकर ये वीडियोस वायरल करवाते हैं ताकि ये अपना फेम हासिल कर सके। ये लीक कल्चर और कंटेंट की आसान अवेलेबिलिटी एक एंडलेस लूप क्रिएट कर रही है। आप स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं, गिल्टी फील करते हैं और फिर दोबारा स्क्रॉल करने लग जाते हैं। देखते ही देखते आपके घंटों वेस्ट हो जाते हैं। पोर्न एडिक्शन सिर्फ पर्सनल मसला नहीं है, ये एक सोसाइटी का क्राइसिस बन चुका है। हमारा फोकस, हमारा रिलेशनशिप और हमारा फ्यूचर सब कुछ हमसे छीन रहा है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती, इसके नेगेटिव इफेक्ट तो अब आप जानोगे। पोर्न एडिक्शन को लोग नॉर्मल समझते हैं, लेकिन इसका असर हर उस चीज पर होता है जो जिंदगी में मैटर करती है। ये समझ लें कि ये एडिक्शन सिर्फ आपकी आंखों का नहीं बल्कि आपके ब्रेन, रिलेशनशिप और गोल्स का प्रॉब्लम बन चुका है। इसका सबसे पहला और बड़ा इफेक्ट आपके ब्रेन पर होता है, यानी ब्रेन डैमेज। जब आप बार बार पोर्न देखते हो तो आपका ब्रेन रिवेयर होने लगता है। आपके ब्रेन का रिवार्ड सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और नेचुरल एक्टिविटीज जैसे लर्निंग, रियल लाइफ रिलेशनशिप और गोल्स अचीव करना, ये सब आपको बेमैनी से लगने लगते हैं। हर बार पोर्न देखने के बाद डोपामिन रिलीज होता है जो आपको प्लेजर फील करवाता है, लेकिन धीरे धीरे आपका ब्रेन हायर डोजेस की डिमांड करता है और आप डेंजरस कंटेंट की तरफ बढ़ने लगते हो। इस एडिक्शन की वजह से आपका फोकस वीक हो जाता है, आप सिंपल टास्क पर भी ध्यान नहीं दे पाते और हर वक्त आपके माइंड में वो इमेजेस और वीडियोस घूमते रहते हैं। ये एडिक्शन आपकी मेमोरी को वीक कर देता है और प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाती है। ये एडिक्शन सिर्फ आपका पर्सनल मसला नहीं है, ये आपके रिलेशनशिप को भी बर्बाद कर देता है। जब आप पोर्न देखते हैं तो आपका माइंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर लेता है। आप जैसा उन वीडियोस में देखते हो वही सीन अपने पार्टनर के साथ रिक्रिएट करना चाहते हो, जो मोरली बिल्कुल सही नहीं होता। क्योंकि उन मूवीज में जो कुछ आपको दिखाया जाता है वो सब फेक और स्क्रिप्टेड होता है। लेकिन ऐसे कंटेंट को कंज्यूम कर करके आपका सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ अपनी मेमोरी में सेव कर रहा होता है, और जब आपको रियल लाइफ में सेक्स करना होता है तो आप अनरियलिस्टिक चीज़ों को रिक्रिएट करना चाहते हैं जो आपके पार्टनर को बिल्कुल सही नहीं लगता। इससे आपका रिलेशनशिप खराब होने लगता है और फिर रियल लाइफ रिलेशनशिप में आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती जो स्क्रीन के फेक वर्ल्ड में मिलती है। सोचिए, स्क्रीन पे जो कुछ दिखाया जाता है वो एक्टिंग के सिवा कुछ नहीं होता, लेकिन आपका ब्रेन रियल समझ के अपने पार्टनर के साथ वही अनरियलिस्टिक चीज़ें एक्सपेक्ट करने लगता है। पोर्न देखने के बाद आपको गिल्ट फील होता है, आप सोचते हैं कि बस ये लास्ट टाइम, अब और नहीं, लेकिन फिर नेक्स्ट डे वापस वही लूप शुरू हो जाता है। ये साइकिल आपके सेल्फ एस्टीम को ख़त्म कर देता है। आप अपने आप को वीक समझने लगते हैं, आपको लगता है कि आपके अंदर विल पावर नहीं है। हर बार जब आप एडिक्शन के सामने हार मानते हैं आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ कम होती जाती है। इस एडिक्शन का असर सिर्फ आपके इमोशन पर नहीं बल्कि आपके करियर, स्टडीज और गोल्स पर भी होता है। आप अपने अंदर खालीपन महसूस करते हैं जो कभी नहीं भर पाता। पोर्न एडिक्शन का सबसे डेंजरस असर आपकी फिजिकल हेल्थ और फैमिली फ्यूचर पर होता है। आप इसको एक नॉर्मल चीज़ समझते हैं, लेकिन असल में ये धीरे धीरे आपकी बच्चे पैदा करने की एबिलिटी को तबाह कर रहा होता है।
जब आप एक्सेस पोर्न देखते हो तो आपका ब्रेन स्क्रीन के अनरियलिस्टिक कंटेंट के साथ अराइजल को लिंक कर देता है। धीरे धीरे आप रियल लाइफ में सेक्स नहीं कर पाते, यानी जब रियल पार्टनर के साथ टाइम आता है तो आपकी बॉडी कोऑपरेट नहीं करती। आसान अल्फाज में कहूँ तो आपका पेनिस हार्ड ही नहीं होता। पोर्न एडिक्शन और मास्टरबेशन के चक्कर में स्पर्म प्रोडक्शन डिस्टर्ब होती जाती है। एक स्टडी के मुताबिक इस एडिक्शन की वजह से स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने लगते हैं, जो आपकी फर्टिलिटी डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो कि मर्द का एक प्राइमरी हार्मोन है, उसके लेवल डिस्टर्ब होते हैं तो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि आप फिजिकली वीक होते हैं और बच्चे होने में प्रॉब्लम का सामना करते हैं। ये एडिक्शन सिर्फ आपकी हेल्थ को ही नहीं बल्कि आपकी फ्यूचर फैमिली को भी ख़त्म कर सकती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या मैं इस एडिक्शन को छोड़ भी पाऊंगा या नहीं? तो जवाब है यस। आप इस एडिक्शन से पूरी तरह जान छुड़वा सकते हैं। तो कैसे? सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि पोर्न देखना आपके लिए एक हैबिट बन चुका है। किसी भी हैबिट को छोड़ने का बेस्ट तरीका उस हैबिट को किसी दूसरी अच्छी हैबिट के साथ रिप्लेस कर देना है। इसके लिए आपको सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, मैं पोर्न एडिक्ट हूँ। फिर आपको उन ट्रिगर को आइडेंटिफाई करना होगा जो आपको पोर्न देखने पर मजबूर करते हैं। अब ये ट्रिगर कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने ये डिसाइड किया हो कि अब आप पोर्न देखना बंद कर दोगे, लेकिन फिर सोशल मीडिया पर आप कोई ऐसी सेंसिटिव, प्राइवेट या वीडियो देख लेते हैं जो आपको उन वेबसाइट पर जाने के लिए मजबूर कर देती है। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आप सोशल मीडिया के उन ग्रुप्स और पेजेस को अनफॉलो कर दो जो आपको पोर्न वेबसाइट पर जाने के लिए ट्रिगर करते हैं। जब भी आपको कोई ऐसी पोस्ट या रील दिखे तो उसे हाइड कर दो या उस पोस्ट को अनइंटरेस्टेड पोस्ट में डाल दे। इससे सोशल मीडिया के एल्गोरिथम ऐसे सेंसिटिव कंटेंट दिखाना बंद कर देंगे। इसके बाद आपको ये समझना है कि आप पोर्न क्यों देखते हो। क्या आप इसके लिए ये सब करते हो ताकि अपना स्ट्रेस लेवल कम कर सको, या उस वक्त देखते हो जब आप अकेला फील कर रहे होते हो या फ्री बैठे होते हो? जब आपको ये पता चल जाए कि पोर्न किस वजह से देखते हो तो आप उनके अपोजिट एक्शन लेकर इस एडिक्शन से जान छुड़वा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप बोर हो रहे हो, कोई हॉबी शुरू कर दे। अगर स्ट्रेस में है तो एक्सरसाइज करें। अकेला फील कर रही हैं तो अपने किसी दोस्त से जाकर मिलें या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लें। अगर आप फ्री हैं तो किसी न किसी तरह से खुद को बिजी रखें। जब आप प्रोडक्टिव एक्शन लेंगे तो आपके पास टाइम ही नहीं होगा ये सारी चीज़ें देखने का। आप कोई नई स्किल सीखो, बुक पढ़ो या फिर बाहर वॉक पर चले जाओ, नेचर को फील करो, अपना सपोर्ट सिस्टम बनाओ। अपने आप को ऐसे लोगों के साथ जोड़िए जो बिल्कुल पोर्न फ्री हो। उनके साथ बात कीजिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, अपने लिए कुछ गोल सेट करें और जितना हो सके इस कंटेंट से दूर रहना है। आपको ये समझना होगा कि सेक्स आपकी लाइफ का एक पार्ट है, पूरी लाइफ नहीं है। मैं अपने चैनल पे इसी तरह की इंफॉर्मेशन कंटेंट डालता रहता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोस मिलती रहें और आप हमेशा अपनी लाइफ में ग्रो करें। अगली वीडियो किस टॉपिक पे बना के दूँ कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।